Ankur Raj, welcome you all in this lecture series, which is based on the class 6, and this is lecture number 9, based on the CBSE pattern and also for CAI and IGCSE board schools. So, in this lecture is based on our parent topic, classification of computers, and in the classification of computers, this is our second type of computer, which is the mainframe computer. Okay students, so let's start without wasting our time. So what's a mainframe computer? This is the second category of computers, and so here what the book which we are referring here is the Click Start. The name of the book is Click Start for the level 6, and this is based on the edition is the third edition. And if you would talk about it's published by the Cambridge University Press. Okay, and this is the ebook of it. So here is the mainframe computer. So as we have read earlier, okay, so in the classification of computers, our first was microcomputer that we have covered, and the second is the mainframe computer. And so this is the second, which is the mainframe computers. So here in the mainframe computer, we will be talking about how is mainframe computer different from a microcomputer. But the microcomputers, the main difference is the microcomputer is everywhere, around us in a daily life. You could see, such as a desktop PC, a laptop, a tablet, a smartphone, where everything is around us each and every time, somehow we can say. But the mainframe computers are very large, and so the mainframe computers are, first of all, not we can say like a portable computer. It's not a portable computer. Means a portable computer is which type of computer which we can take it from one place to another, जिससे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर जा सकते हैं. But this is very much large, so it is not portable. It is not a portable computer. Okay, it is not a portable computer, and also it's we can say like the size somehow could be also like a size of a room. It could be placed in room, and it could take the size of the room, occupy the size of a room also, a small room or a big room. So enormous amount of information it could be saved inside a mainframe computer. So this is the capacity of the mainframe computer is, we can say, higher, the space what it can occupy, the data which can it handles is large, and also it can performs tasks simultaneously. Means it can handle the data, enormous data, means large amount of data, बहुत ज़्यादा डेटा ये हैंडल कर सकता है, एंड साथ ही साथ वो बहुत सारे कामों को एक साथ कर सकता है. मीन्स लाइक मल्टीटास्किंग, इट इज़ डूइंग मल्टीटास्किंग. ओके, नाउ here it is written that they can communicate with many users at the same time. बहुत सारे यूज़र्स के साथ वो साथ ही एक बार में कम्युनिकेट कर सकता है, लिंक क्रिएट कर सकता है ना, एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में, इन द सेम टाइम इट कैन कम्युनिकेट with user 1, user 2, user 3, and many more. And also they are expensive. Okay, means this is an upgraded form of computer. Earlier was mini computer, and then you can say like mainframe computer. But यहाँ पर क्या जानना है हमें, वो क्या थे, एक्सपेंसिव थे, और उन्हें एक बार में बहुत सारे यूजर्स के साथ आप कम्युनिकेट, आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं. दे पोर्टेबल नहीं थे, एंड द स्पेस द ऑक्यूपाइंग वॉज वेरी मच लार्ज, एंड उनमें जिनका साइज़ था, और साथ ही साथ जो उनका डेटा स्टोर करने का साइज़ था, वो भी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा था. द मेनफ्रेम कंप्यूटर्स यूजुअली हैव सेवरल टर्मिनल्स कनेक्टेड टू देम. मीन्स बहुत सारे टर्मिनल्स होते थे. जैसे अगर मैं बात करूँ, इफ यू टॉक अबाउट द मॉल्स, यू गो फॉर शॉपिंग, तो एक मेन कंप्यूटर होता है ना, मेन कंप्यूटर होता है यहाँ पर आपके पास, एंड देयर आर सेवरल डम टर्मिनल्स, है ना, यहाँ पर लोग क्यू बनाकर खड़े होते हैं, ना, लाइन बनाकर खड़े होते हैं. तो यहाँ पर ये सब जो कंप्यूटर्स होते हैं, दे आर लाइक डम टर्मिनल्स, है ना. उनके पास अपना कोई CPU नहीं होता, वो बस डिस्प्ले कराने का काम करते हैं, है ना. बस वहाँ पर इनपुट जाता है ना, आउटपुट दिखाने का काम करते हैं, है ना. बट मेन प्रोसेसिंग जो होती है वो मेन कंप्यूटर से होती है.
सो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैव यूजुअली हैव सेवरल टर्मिनल्स कनेक्टेड टू देम। तो एक हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है, उससे बहुत सारे टर्मिनल्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, मॉनिटर्स कनेक्टेड होते हैं, वहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट हमें देते हैं हम लोग कीबोर्ड से। आप देखते होंगे ये चीज़ है, आप मॉल्स में देखते हैं, जब शॉपिंग करने जाते हो, लास्ट में शॉपिंग करने के बाद एंड में हम लोग क्या देखते हैं, है ना, कि हम लोग यहाँ पर लाइन में क्यू में लोग लगे हैं, यहाँ पर लगे हैं, तो वो सब कंप्यूटर्स नहीं हैं, दे आर जस्ट टर्मिनल्स। और फिर इनपुट आउटपुट है ना, प्रोसेसिंग हो रहा है, बट मेन प्रोसेसिंग जो हो रहा है आपका, वो आपका हो रहा है एक मेन फ्रेम कंप्यूटर से, और वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से ही आपके जितने भी टर्मिनल्स हैं वो कनेक्टेड हैं। एंड दीज टर्मिनल्स लुक लाइक स्मॉल कंप्यूटर्स, मीन्स इट लुक्स, है ना, वी कैन एज्यूम दैट दे आर कंप्यूटर्स, बट है ना, जिन्हें जानकारी नहीं है, जिन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है, दे वुड थिंक दैट दे आर कंप्यूटर्स, बट दे आर नॉट कंप्यूटर्स, दे आर ओनली यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। सो कैसे वो सेंड करेंगे इन्फॉर्मेशन को, रिसीव करेंगे, सेंड करेंगे इन्फॉर्मेशन टू द कंप्यूटर्स बाय इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड्स, माउस। और फिर वो कैसे मीन्स लाइक वो लाइक इन्फॉर्मेशन रिसीव करेंगे बाय इनपुट डिवाइसेस, रिसीव करने के लिए इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड एंड माउस, एंड सेंड करने के लिए वापस से, है ना, बाय यूज़र को दिखाने के लिए बाय आउटपुट डिवाइसेस लाइक वी कैन से लाइक स्पीकर्स एंड द मॉनिटर्स, है ना। जैसे कि आपने इनपुट दिया कि अच्छा क्या क्या सामान है, उनका बारकोड रीड करके, है ना, वहाँ पर आप बारकोड रीड कर रहे हैं आप, है ना, बारकोड से आप इनपुट जा रहा है ना, माउस से आप क्लिक कर रहे हैं, है ना, वो आपका सेल्समैन कर रहे हैं, फिर आपका कीबोर्ड से वो एंटर प्रेस कर रहे हैं, तो इनपुट डिवाइसेस जा रहे हैं, मीन्स रिसीव कैसे कर रहे हैं हमारा टर्मिनल इन्फॉर्मेशन, ये सारे इनपुट डिवाइसेस से, और वापस वो, है ना, आपको प्रोसेसिंग तो हो रही है आपकी मेन फ्रेम कंप्यूटर से, है ना, सारे टर्मिनल्स का जो इनपुट जा रहा है, फिर वो मेन फ्रेम में प्रोसेसिंग हो रही है, और फिर वापस से वो यूज़र को आउटपुट क्या सेंड हो रहा है ना, वो या तो इट्स लाइक सेइंग द अमाउंट, है ना, कि आपका अमाउंट हुआ लाइक स्पीकर, है ना, और आपको डिस्प्ले हो रहा है कि आपका फाइनल अमाउंट हुआ, डिस्प्ले कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ मॉनिटर्स। सो मीन्स वी कैन से लाइक दीज टर्मिनल्स लुक लाइक स्मॉल कंप्यूटर्स, बट दे ओनली यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। मीन्स इनपुट एंड आउटपुट का काम हो रहा है, बट द प्रोसेसिंग का काम कहाँ हो रहा है, वो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में हो रहा है। एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, उससे ही सारा टर्मिनल्स अटैच है, तो सारे टर्मिनल्स में हमारे जो अलग अलग टर्मिनल्स हैं, वहाँ पर सिर्फ हमारा इनपुट और आउटपुट का काम हो रहा है, और हमारा ये सारे टर्मिनल्स जुटे हैं किससे, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर से, ओके। एंड दीज टर्मिनल्स फ्रॉम द मेन कंप्यूटर, है ना, ये लिखा है, दीज टर्मिनल्स लुक लाइक स्मॉल कंप्यूटर्स बट ओनली यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, दैट इज फॉर इनपुट एंड आउटपुट, बट द प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन द मेन फ्रेम कंप्यूटर from the main computer. So these mainframe computers usually have several terminals connected to them, and the terminals can be located either in the same room. और यही बात बताया गया है कि ऐसा नहीं कि आपको सामने लगे कि अरे कहाँ कंप्यूटर है ना, it could be on the same place or in the same room, and also it could be in the other room, ठीक है। तो टर्मिनल्स जो है हो सकते हैं आपके या तो उसी रूम में होंगे, ठीक है, मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर जो आपका मेन कंप्यूटर होगा जिससे सारे टर्मिनल्स कनेक्टेड होंगे, वो तो या तो उसी रूम में होंगे या तो किसी दूसरे रूम में होंगे। मीन्स अगर आप लाइव, है ना, रियल टाइम सिनेरियो में अगर आप बात करें तो आप देखे होंगे, तो यू कैन से लाइक हाँ वहाँ पर होगा या नहीं भी हो सकता है। टर्मिनल्स कैन बी लोकेटेड ईदर इन द सेम रूम विद द मेन फ्रेम कंप्यूटर, और दे कैन बी इन द डिफरेंट रूम्स, या किसी दूसरे लाइक फ्लोर पे हो सकता है, किसी दूसरे बिल्डिंग हो सकता है, किसी दूसरे शहर में भी हो सकता है। इट कुड बी लाइक दिस सिनेरियो ऑल्सो। एंड तो अब यहाँ बात हो रही है स्टूडेंट्स लार्जर बिजनेसेस की, है ना। तो लार्जर बिजनेसेस, ओके, तो लार्जर बिजनेसेस मीन्स लाइक वी कैन से लाइक मॉल्स एंड ऑल। तो लार्जर बिजनेसेस में गवर्नमेंट एजेंसीज इन द बैंक्स एंड द यूनिवर्सिटीज़ यूजुअली यूज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डाउन टर्मिनल्स होते हैं, है ना, हमारे पास बहुत सारे पेमेंट्स आ रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना, बट सबको वो एक्सेस नहीं दिया जा सकता, है ना। हमारा इनपुट का काम हो रहा है, हमारा आउटपुट का काम हो रहा है, बट हमारा मेन कंप्यूटर जो है वो कहीं और है। तो ये ऐसा सिनेरियो आपको देखने को मिलता है लार्ज बिजनेसेस में, लाइक मॉल्स में, गवर्नमेंट एजेंसीज़ में, लाइक बैंक्स में, यूनिवर्सिटीज़, है ना। कई बार आपके हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, लाइक फोर्ड एंड ऑल, सॉरी लाइक फोर्टिस एंड ऑल, है ना। एंड बिग, या देखिए यहाँ लिखाई हैं बिग हॉस्पिटल्स, है ना, इन द एयरलाइन रिजर्वेशन कंपनीज़, जहाँ रिजर्वेशन होता है आपका रेलवेज़ में, आपके एयरप्लेन के टिकट्स में, एंड मैनी मोर अदर लार्ज बिजनेसेस प्रेफर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स
दे यूज टू प्रेफर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा। जहाँ पर भी हमारे पास इनॉर्मस डेटा को हैंडल करना है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें इनपुट लेना है, हमें आउटपुट देना है ना, इस तरह के काम हमारे हो रहे हैं, इनपुट का आउटपुट का बहुत सारा डेटा है जिसे आपको हैंडल करना है। तो फिर इफ़ यू आर प्लेइंग विथ सो मेनी ऑफ डेटा, ह्यूज लार्ज स्केल डेटा, इट कुड बी स्मॉल अमाउंट, लार्ज अमाउंट, but the intensity, the frequency of data is very much high, then we will go through the, we can say like mainframe computers, and जो हमें नज़र आता है वो हमारा उनका टर्मिनल्स होता है जो कि आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। और वो मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका या तो उसी रूम में हो सकता है या फिर उसी फ्लोर पे बिल्डिंग में या फिर दूसरे शहर में भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सो दिस मच फ्रॉम माई साइड इन दिस पर्टिकुलर सेशन। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड बी कवरिंग द मिनी कंप्यूटर्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। होप सो आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं यहाँ पर एंड करता हूँ एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 में, फिर दूसरे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ। ओके, थैंक यू क्लास, गुड लक।